ورنہ نوجوانوں کی زندگی جس طرح سے بگڑ رہی ہے، میرے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں، کمپلینٹس آ رہی ہیں، شکایتیں آ رہی ہیں، نوجوان بچی 13 سال کی بچی تھوڑا کھا پی کر صحت مند کیا ہوئی ہے، ماں کے سینے پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے مار مار کر گردنیں توڑ دی ہیں۔ ایسی مائیں آ کر میرے پاس روئے ہیں کہ اور ڈر کے ماں کہہ رہی ہے کہ پلیز یہ بات میری بیٹی کو نہیں بتانا۔ اسی شہر مہاراشٹر کی ایک ماں میرے پاس آ کر روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، اگر فون نہیں دیتی ہے تو تجھے قتل کر دوں گی، میں مار دوں گی۔ اور والد ہے سعودی عربیہ میں، دھوپوں میں کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور، یہاں بچے بچیوں کو پتہ بھی نہیں کہ والد کس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ کیا جو سعودی عربیہ جا کر والدین محنت کر رہے ہیں، کیا وہ پیسے وراٹ کوہلی کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں؟ کیا سچن ٹینڈولکر کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں؟ کہ شاہ رخ خان کے لیے محنت کر رہے ہیں آپ کے والد؟ آپ کے والد کے ہیرو آپ ہو، آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور آپ اپنی ماں کو ستا رہے ہو، یہاں پر سینے پہ بیٹھ کر قتل کرنے کا آپ دھمکی دے رہے ہو۔ ایسے رلانے والے بچے پیدا ہوئے آج، لڑکے تو دور، لڑکیوں کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ اور والد آئے تو والد سے نہیں ڈر رہے ہیں، والد کو بھی کہہ رہے ہیں کہ سمجھا دو اپنی وائف کو کہ اگر یہ فون نہیں دیے تو میں اس کو مار دوں گی۔ یہ والد سے یہ انٹریکشن ہے۔ آپ سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو کانورسیشن سن رہا ہے نا، ماں باپ سے بچوں کا جو کانورسیشن ہے، تو اللہ کو کیا غصہ نہیں آتا ہوگا؟ کتنا غصہ آتا ہوگا؟ اللہ کا من کرتا ہوگا کہ زلزلہ آ جائے اس گھر میں، لیکن اللہ کریم ہے نا، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ بچ رہے ہیں۔ ورنہ پھر اللہ اپنی جلال بھی دکھائے، غصہ دکھانے پر آ جائے، پناہ مانگیں گے ہم لوگ کہ والدین کے ساتھ نوجوان بچوں کا کیا رویہ ہے۔ آج ہم لوگ جو سکول جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، کیا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں نہیں پتا ہمیں۔ 10-12 سال ہم نے سکول میں گزارے، 3-4 سال ہم نے یونیورسٹی میں گزارے، اور ڈگری حاصل کرنے والے صرف 20-25%، 70% یا تو ڈراپ آؤٹ ہے، یا ڈیٹین ہوئے ہیں، یا ایسے نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں جن کے عقل میں کچھ نہیں پڑا ہے، صرف ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ وہ کہاں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ 48 ڈگریز دھوپ میں اس محلے سے اس محلے میں لے آ کر کھانا کھلا رہے ہیں۔ جو سویگی، زومیٹو، یہ کام غلط نہیں ہے، لیکن کیا یہ کام کرنے کے لیے تیرے والد نے تجھے انجینئر بنایا تھا، تجھے MBA پڑھوایا تھا؟ MBA کا فل فارم کیا ہے؟ پڑھیں سمجھیں، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن۔ بزنس مطلب کیا ہے؟ آپ کروڑوں بنا سکتے ہیں۔ آج MBA کی ڈگری ہمارے ہاتھوں میں ہے، نالج زیرو ہے۔ کیوں؟ برائے نام کالج گئے، کچھ اٹینڈ ہی نہیں کیے کلاس ہم لوگ۔ فکر ہماری کہاں پر ہے؟ سگریٹ میں، چائے میں، گٹکے میں، عشق بازی میں، ایسے ڈرگز میں انوالوڈ ہیں بچے جو 2-3 دن بے ہوش رہتے ہیں، اور والدین بھی بے ہوش، پتہ ہی نہیں کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے ایک دفعہ میرے دوستوں کے ساتھ سگریٹ پیتے ہوئے دیکھے تھے۔ سگریٹ مجھے پیتے ہوئے نہیں، میرے دوستوں میں ایک دوست سگریٹ پی رہا تھا، سارے 4-5 لوگ کھڑے ہوئے تھے، میں بھی شامل تھا۔ تو میرے ابا حضور جب دیکھے ہیں تو میں سمجھا کہ چلو آج ہماری شادی ہے۔ اب جب میں گھر گیا تو والد صاحب مجھے بٹھا کر بولے کہ میں میڈیکل فیلڈ میں فارماسسٹ ہوں، رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہوں، میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، اور میرے والد بڑے مشہور تھے محلے میں، گھر کے باہر کرسی پر بیٹھ کر آنے جانے تمام چھوٹے بڑے ہندو مسلمان سب کو سلام کیا کرتے تھے، ایک دوسرا بلا کر کاؤنسلنگ کرتے تھے، ایسے شرابیوں کی کاؤنسلنگ کرتے تھے جو یقین ہے کہ کبھی یہ زندگی میں شراب چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، اس کا ایک قدم ادھر پڑے تو دوسرا کہاں اس کو نہیں پتا۔ ایک دفعہ ہمارے گھر کے سامنے شامیانہ ڈالے نا، ٹینٹ وغیرہ تھا، تو ایک شرابی گزر رہا تھا، وہ یہ کہتے ہوئے گزر رہا کہ ارے یہ ہمارا محلہ نہیں ہے، چلو دوسرا۔ وہ ٹینٹ کو دیکھ کر سمجھ رہا کہ کوئی دوسرے محلے میں آ گیا ہے۔ ایسے شرابیوں کو رکا کر وہ کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے، یہ بہت غلط چیز ہے،
ये नहीं करना है। तो वालिद साहब ने मुझे बताया कि बेटा मैं रोज़ काउंसलिंग करता हूँ और आप भी देखते हो, और आप अगर सिगरेट पीते हो, क्योंकि मैं 24 घंटे नज़र नहीं रख सकता आप पर, अगर आप सिगरेट पीते हो आप तब भी मेरे बेटे ही रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, मेरे दिल में आपके लिए इतनी भी जगह नहीं रहेगी। वो एक बात जो अब्बा ने क्या कहा कि मेरे बेटे तो रहोगे ज़रूर तुम, लेकिन मेरे दिल में मोहब्बत नहीं रहेगी आपके लिए। तो मैंने सोचा कि जब बाप ही कह रहा है कि मैं तुझे नहीं चाहता हूँ, दिल में जगह ही नहीं है, तो फिर वो ज़िंदगी नहीं है। अगर आपके बाप के दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, माँ के दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर ये जीना नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। हालांकि माजी में भी नहीं किया था, मुस्तकबिल में शायद मैं करता, लेकिन वो वालिद की एक बात मुझे रोक रखी है। मेरे साथ कई सारे बच्चे कॉलेज में सिगरेट पिया करते थे, मैं पैसिव स्मोकर था, एक्टिव स्मोकर नहीं था। पैसिव यानी दोनों बैठे हैं, एक पी रहा है एक बराबर में बैठा है, तो बराबर बैठने वाले को भी पैसिव स्मोकर कहते हैं, क्योंकि उसका भी धुआं आपको सांस के जरिए से लंग्स में जाता है, लंग्स की बीमारी आती है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बीमारियों में देखा मैंने खांसते हुए, ओनली बिकॉज ऑफ देयर फादर्स। वालिद की वजह से बच्चे बीमार पैदा हो रहे हैं। आज एक बंदा 3-3, 4-4, 5-5 सिगरेट डब्बी पीते हैं। 50-50 सिगरेट पीने वाले भी आज मौजूद है, और वो शादी करते हैं, शादी करके ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो बीमार पैदा हो जाते हैं, उनके भी लंग्स कमजोर होते हैं। तो अपाहिज बच्चे पैदा करने के लिए आप आए हो इस दुनिया में। क्या आपने नहीं सुना मौलाना को कि टीपू सुल्तान की जरूरत है इस दुनिया को, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जैसे जबरदस्त लीडर्स की जरूरत है इस दुनिया को। लेकिन आज हम लोग कैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं? अपाहिज बच्चे। सिगरेट बाप ने खूब पिया पैदा किया, तो बच्चा भी वैसा ही पैदा होगा। पहले तो आधा बीमार पैदा होगा, और वो बीमार होने के बाद और सिगरेट हाथ पे लेगा, तो फिर क्या हशर होगा उसका। तो आप लोग ये बातों को सिर्फ सुने ना, अपने जिंदगी में अमल में ले आए। जितने लोग शिरपुर में सिगरेट पीते, वो समझ जाए कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। एक बंदा कोई अगर 10 सिगरेट पी रहा है, तो क्या आप 150 रुपये नहीं खर्च रहे हो? सेहत खराब करने के लिए खर्च रहे हो। वही 150 रुपये ले आकर कोई ऐसे बूढ़ी माँ को ले आकर आप खाना खिलाएं और उसके सीने से दुआ लग जाए, तो आप सबब बन जाएंगे, उसकी दुआ से आपको शायद जन्नत मिल जाए। ऐसी औरतें बैठी हुई हैं, ऐसे बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, ऐसे गरीब लोग इस दुनिया में, भारत देश में भी है, जो अंतड़ियां सूख चुके हैं, कूड़े में जाकर टटोलते हैं कि कुछ मिल जाए तो खा लूं। ऐसे बासी खाना खाते हैं हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, और हम लोग हवा में उड़ा रहे अपनी दौलत को, मेहनत की कमाई को। हमें समझना चाहिए कि वही 150 ले आकर छोटे मासूम बच्चे, दूध न मिलने की वजह से कितने छोटे बच्चों की मौत हो रही है इस दुनिया में। इसका इल्म है या नहीं पता नहीं, आप लोग को कहाँ हमारी जनरल नॉलेज है। कई छोटे मासूम बच्चे माँ के सीने में दूध नहीं होने की वजह से मौत वाक़ होती है, तड़पते हैं कि मैं मेरे बच्चे को दूध पिलाऊं, जेब में पैसे नहीं है। ऐसे गरीब बच्चे हैं, ऐसे गरीब लोग हैं, और हम लोग न जाने 200-200, 300-300 रुपये सिगरेट पर खर्च रहे हैं। आज मुझे सुनने वाले ये फैसला कर लें कि हमारा एक रुपया हमारा अच्छे काम में इन्वेस्ट में हमने करना है। किताबें खरीदना है, आप ऐसे की चीज़ें खरीदें जिससे आपके बच्चे कामयाब हो जाएं, नस्ल अच्छी बन जाए। आज हम लोग ना नस्ल बना रहे हैं, ना उन्हें कोई डायरेक्शन दे रहे हैं। अल्लाह ने ज़रा क्या हमें नवाजा पैसों से, तो बस हमने ज़िंदगी अय्याशी में गुजारी। मरते वक्त में हमने विल्स जो देना होता है वो भी बता कर नहीं गए। बाप मर गया, मरने के बाद 4 भाई है, 4 भाई WWF में जो लड़ते हैं ना रेसलर्स, वैसा लड़ के मरते हैं। किस पर लड़ रहे हैं? सिर्फ 500 गज ज़मीन पर लड़ रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन। अब्बा मरते वक्त में बोले थे मैं ज़्यादा खिदमत किया, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। बीच में बहन आ जाती है कि नहीं, मरते वक्त में मैंने ज़्यादा मेहनत की है, मैंने खिदमत की है, तो क्या खिदमत तुझे वो 500
गज जमीन के टुकड़े के लिए तूने वालिदैन की खिदमत की है। 100 गज पर कई सारे ऐसे भाइयों को देखा मैंने जो एक दूसरे से सलाम भी नहीं करते हैं। 100 गज के टुकड़े के लिए बातचीत बंद हो गई है आपकी, और नमाजें भी पढ़ रहे हैं, अज़ान हो रही है, मस्जिद भी जा रहे हैं। कि क्या काबिल कबूल है हमारे सुजूद जो हम सजदे करते हैं? क्या हमारी नमाज कबूल हो रही है? दो आपके भाई हैं और आपके भाई से अनबन है, भाई सलाम कर रहा, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप जवाब नहीं देकर मस्जिद की ओर जा रहे हो। मेरे नज़दीक मुफ्ती साहब बैठे हुए पूछें क्या वो नमाज कबूल होगी? मैं तो समझूंगा कि वो नमाज काबिल कबूल नहीं है। जो सगा भाई सलाम कर रहा है तुझे और तू जवाब नहीं दे रहा है, और फिर नमाज के लिए जा रहा है, किसकी सुन्नत को तर्क करके तू जा रहा है मस्जिद में नमाज पढ़ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ख़त्म करके आप मस्जिद में जाकर सजदा कर रहे हो। आज ऐसे कितने लोग हैं जो ख़ानदान में हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, भाई भाई से बात नहीं, बहन बहन से बात नहीं, भाई बहन में बात नहीं, दोनों में कोई मोहब्बत नहीं है। तो यहाँ हमने समझने की ज़रूरत है। एक नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज के लिए शर्त है वज़ू। बिना वज़ू कोई शिरपुर में नमाज पढ़े हैं? मेरा सवाल आप लोग से, कभी आपने नमाज बिना वज़ू पढ़ी है? तो वज़ू जब करते हैं तो हम पानी लेकर क्या करते हैं? अपने बदन को साफ करते हैं। तो बदन को साफ करें, वज़ू आपने बना लिया, लेकिन कुछ ऐसे इन्फेक्शंस बाकी है जो हमारे सीनों में है, जो हमारे दिलों में है, जो हमारे जहनों में है। वो गंदगी लेकर हम नमाज में पहली सफ में खड़े होते हैं। तो क्या अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है हम? जो वालिद से बात नहीं कर रहे हैं, वालिदा से बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? बीवी आ गई है तो मियाँ मिट्ठू बन गए, जोरू के गुलाम बन गए। 20 साल 25 साल माँ ने कितनी खिदमत की तेरी, क्या एक गोरी बच्ची को ला लिया घर में, आशिक हो गया, जोरू का गुलाम हो गया। अब फिर झगड़े होने लगे, फिर माँ से बात करना छोड़ दिए हैं। ये तमाम चीज़ें आज माशरे में हो रहे हैं। तो आप अपने दिल को साफ करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग नियत करें, आज शिरपुर वालों, आज गवाह बनाओ इस रात को कि मैंने मेरे दिल को साफ किया है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। क्या इतनी जुर्रत रख सकते हैं आप लोग? क्या बोल सकते हैं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है इस दुनिया में? हाथ उठाकर कोई बोल सकता है? बोले मैं सबको माफ करता हूं। अरे डरे मत, बोले, कहे मैं सबको माफ करता हूं। 4 या 10 लोग माफ किए हैं। 90% लोग हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं, नहीं वही दुश्मनों के साथ जीना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शिरपुर के इस ज़मीं पर खड़े होकर अल्लाह को गवाह बनाकर आपके सामने अलल ऐलान करता हूं कि मुनव्वर ज़मा के दिल में किसी के लिए दुश्मनी नहीं है। मेरे लिए शायद लोगों में दुश्मनी होगी, साजिशें रच रहे होंगे, उन वैसे लोगों को भी मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूं। यही ज़िंदगी है, इसी से कामयाबी मिलती है।